Ever wondered what makes a movie like Tiger 3 a standout in the world of action thrillers? Buckle up as we dive into the exhilarating journey of this blockbuster. In the year 2023, the Indian Hindi-language action thriller film Tiger 3, directed by Manish Sharma, hit the silver screens. Produced by Aditya Chopra under Yash Raj Films, the movie stars the dynamic trio of Salman Khan, Katrina Kaif, and Imran Hashmi. Serving as the sequel to Tiger Zinda Hai from 2017, this movie is the fifth installment in the YRF spy universe. The plot unfolds post the events of war in 2019 and Pathan in 2023, thrusting Tiger and Zoya into a perilous mission to clear their names after being framed as traitors. The magic began to take shape in March 2021, with principal photography kicking off in exotic locales like Delhi, Mumbai, Istanbul, St. Petersburg, and Vienna. The film's soundtrack, composed by Pritam, and the background score by Tanuj Tiku, added to the thrill of the narrative. With an estimated budget of 300 crores, Tiger 3 is not only one of the most expensive Indian films, but also the most expensive film produced by Yash Raj Films. Released on November 12, 2023, Tiger 3 took the audience by storm, screening in standard, IMAX, 4DX, and other premium formats. Coinciding with Diwali, the film received a mixed bag of reviews. Critics lauded the action sequences, music, and cast performances, especially Katrina Kaif and Imran Hashmi. However, the plot and pace didn't escape criticism. The film grossed 466.63 crores, making it the fifth highest-grossing Hindi film and the eighth highest-grossing Indian film of 2023. The story of Tiger 3 is an intriguing blend of past and present. It begins in 1999, with a young Zoya witnessing her father's death in a bomb blast. Fast forward to the present, Tiger is summoned for a mission to rescue his former handler, Gopi Arya. The plot thickens as Zoya gets embroiled in a mission planned in Pakistan, and the duo is framed as traitors. The narrative takes us through a series of suspenseful events, culminating in a high-octane climax. To sum it up, Tiger 3 is a roller coaster ride of action, suspense, and thrill, featuring a star-studded cast, exotic locations, and a high-octane plot. This film, despite its mixed reviews, managed to capture the audience's imagination, making it one of the highest-grossing films of 2023. In the world of action thrillers, Tiger 3 definitely roars loud. टाइगर 3 ये सलमान खान की हिंदी फिल्म है। सबसे पहले 2012 में एक था टाइगर आई थी, उसके बाद 2017 में टाइगर जिंदा है आई थी, और फिर ये अभी टाइगर 3 12 नवंबर 2023 को रिलीज़ हुई। एक था टाइगर ने सबसे ज़्यादा कमाई की थी। उसके पहले दिन की अर्निंग तकरीबन 33 करोड़ रुपए थी, 33 करोड़, और लाइफ टाइम कलेक्शन उसकी इंडिया में 198 करोड़ थी। उसके बाद 2017 में जब टाइगर जिंदा आई तो उसने लगभग 340 करोड़ का बिजनेस किया इंडिया में। अब जब ये टाइगर 3 का पार्ट 3 आया है 12 नवंबर पे, तो वो दिवाली का दिन था, क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी चल रहा था। तब भी दिवाली के बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप के होते हुए भी उसने दिवाली के दिन सबसे ज़्यादा बिजनेस किया, 44 करोड़ रुपए का, और उसकी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 500 करोड़ रुपए है, और लाइफ टाइम कलेक्शन इंडिया में तकरीबन 290 करोड़ रुपए है। ये 12 नवंबर को रिलीज़ हुई थी, जिसमें सलमान खान, कतरीना कैफ, इमरान हाशमी, शाहरुख खान केमियो, ऋतिक रोशन केमियो और काफ़ी और भी अदाकार हैं। इस टाइगर 3 की जो सीरीज़ है वो शुरू होती है अभी कहानी जोया से, कि वो पाकिस्तान की आईएसआई की एजेंट कैसे हुई, क्यों बनी, किस तरह हुआ, क्या सिस्टम था। इसीलिए फिर उनको वो पाकिस्तान में अरेस्ट कर लेते हैं। तो सलमान खान फिर उनको छुड़ाने के लिए जाता है, तो वहाँ सलमान खान को फिर कैद कर लिया जाता है, इमरान हाशमी उसको कैद कर लेता है। तो ये फिर सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द ये घूमती है टाइगर 3 की।
टाइगर 3 ए 2023 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी मनीष शर्मा ने की है और यश राज फिल्म्स के तहत आदिति चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है। इसमें सलमान खान, कटरीना कैफ और इमरान हाशमी शामिल हैं। टाइगर जिंदा है 2017 का सीक्वल ये YRF स्पाई यूनिवर्स की 5वीं किस्त है और ये जंग 2019 और पठान 2023 के वाकयात के बाद तरतीब दी गई है। फिल्म में टाइगर और जोया को गद्दार करार देकर अपने नाम साफ करने के लिए जानलेवा जंग पर जाने पर मजबूर किया जाता है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज मार्च 2021 में दिल्ली, मुंबई, इस्तांबुल, सेंट पीटर्सबर्ग और वियना में फिल्म बंदी के साथ हुआ। फिल्म का साउंड ट्रैक प्रीतम ने तरतीब दिया है जबकि बैकग्राउंड स्कोर तनुज टकू ने तरतीब दिया है। 300 करोड़ रुपए के तखमीना बजट के साथ ये सबसे महंगी हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है और यश राज फिल्म्स की तैयार करदा सबसे महंगी फिल्म है। 3-6 टाइगर 3-12 नवंबर 2023 को मेयारी IMAX 4DX और दीगर प्रीमियम फॉर्मेट्स में दिवाली के मौका पर जारी किया गया था। इसे नाक़दीन की तरफ से मिले जुले जायजे मिले, जिसमें उसके एक्शन सीक्वेंस, मौसीकी और कास्ट परफॉर्मेंस खास तौर पर कैफ और हाशमी की तारीफ की गई, लेकिन इसके प्लॉट और रफ्तार पर तनकीद की गई। एक फिल्म ने दुनिया भर में 466.63 करोड़ रुपए $58 मिलियन कमाए, 2023 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और 2023 की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई। 1999 में एक नॉर्मर जोया ने अपने वालिद, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंट रेहान नजर की एक बम धमाके में मौत को देखा। इसके जनाजे के बाद नजर के सरपरस्त आतिश रहमान ने इससे मुलाकात की, जो उसे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस में शामिल होने पर राजी करता है। मौजूदा वक्त में अविनाश टाइगर सिंह राठौर को रॉ चीफ मैथिली मेनन ने एक मिशन के लिए बुलाया है ताकि टाइगर के साबिक हैंडलर गोपी आर्या को बचाया जा सके, जो पाकिस्तान में एक मिशन की मंसूबाबंदी के बारे में तालिबान से मालूमात हासिल करने की कोशिश के बाद अफगानिस्तान में पकड़ा गया था। अपने बचाव के बाद गोपी ने टाइगर को बताया कि जोया मंसूबाबंद मिशन में शामिल है और जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। टाइगर जोया की जासूसी करना शुरू कर देता है और बाद में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जिब्रान शेख नामीरा के एजेंट की हिफाजत पर मामूर हो जाता है, जिसने गोपी के साथ काम किया और पाकिस्तान में दरियाफ्त होने के बाद मुल्क फरार हो गया। शीर ने जोया की शेख को कत्ल करने की कोशिश की गवाही दी। इसे बचाने के बाद टाइगर आतिश के हाथों पकड़ा जाता है, जिसने इंकिशाफ किया कि इसने जोया को करीब मुहलिक मंशियात पिलाकर और उसे और टाइगर के बेटे जूनियर को अगवा करके कत्ल करने पर मजबूर किया। टाइगर और जोया अपनी रा के एजेंटों की टीम को भर्ती करते हैं आतिश के लिए एक ब्रीफकेस चराने के लिए, जिसमें जूनियर के बदले इस्तांबुल में मिसाइल लॉन्च कोड होते हैं। आतिश ने इसके बाद टाइगर और जोया को उनके मुतालिका ममालिक ने गद्दार करार दिया, जिसके नतीजे में टाइगर को शुमाली पाकिस्तान में एक फौजी जेल में रखा गया।
12 साल पहले के फ्लैशबैक में ये इंकिशाफ हुआ है कि आतिश ने वियना में हिंदुस्तानी फौजी जनरल को कत्ल करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन मुआहिदे को पटरी से उतारने की कोशिश की। मंसूबे के साथ ताउन करने से इनकार करने के बाद जोया ने टाइगर को खुफिया तौर पर मतला किया। आतिश की हामिला बीवी शाहीन बेग ने कत्ल की कोशिश की लेकिन टाइगर ने उसे गोली मार कर हलाक कर दिया। आतिश ने इस बात से इनकार किया कि इसके एजेंटों को इस मंसूबे का इल्म था और बाद में इसे कैद कर दिया गया और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से निकाल दिया गया। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन पठान की मदद से फरार होने में कामयाब हो जाता है। टाइगर इस्लामाबाद का सफर करता है जहां इसकी मुलाकात अपने गोद लिए हुए बेटे हुस्न से होती है जिसे टाइगर ने अकरत के एक मिशन में बचाया था। आर्मी स्टाफ जनरल इम्तियाज हक पाकिस्तानी वजीर आजम नसरीन ईरानी को कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं ताकि आतिश को उनकी जगह ले सकें। टाइगर, जोया और उनकी टीम खुफिया तौर पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में दाखिल होती है और ईरानी को मंसूबा जाहिर करती है। टाइगर और जोया ईरानी को एक जेर जमीन बंकर में ले जाते हैं और टाइगर हक को इस मंसूबे को अवामी तौर पर जाहिर करने पर मजबूर करते हैं। ताहम आतिश खुफिया तौर पर जावेद की मदद से हक को मार डालता है, जो कि शाहीन का भाई जाहिर होता है और टाइगर को हक को कत्ल करने का फ्रेम देता है। अबरार और किरण को आतिश और जावेद ने कत्ल किया, जो ईरानी को तलाश करते हैं। हुस्न खुद को कुर्बान कर देता है। टाइगर और जोया को ईरानी को फरार होने में मदद करने देता है। जोया ने जावेद को कत्ल करके अबरार और किरण की मौत का बदला लिया। टाइगर और आतिश एक लड़ाई में मशगूल होते हैं, जिसके नतीजे में टाइगर आतिश को मार देता है। ईरानी ने आतिश की साजिश को अवाम के सामने बेनकाब किया और टाइगर, जोया और उनकी टीम बेकसूर साबित हुई। टाइगर मैथिली से राब्ता करता है और इसे यकीन दिलाता है कि वो हमेशा अपने मुल्क की खिदमत के लिए हाजिर रहेगा। क्रेडिट के दरमियानी मंजर में कर्नल सुनील लोथरा कबीर धालीवाल से राब्ता करता है और इसे एक नामालूम शख्स को कत्ल करने का जिम्मा देता है। कास्ट सलमान खान बतौर ओयनाश टाइगर सिंह राठौर, एकरा एजेंट और जोया के शौहर। कटरीना कैफ बतौर जोया, एक इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंट और टाइगर की बीवी गुरकीत कौर जवान जोया के तौर पर इमरान हाशमी बतौर आतिश रहमान, साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल इसी रेवती बतौर मैथिली मेनन, राकी चीफ समरन बतौर वजीर आजम पाकिस्तान नसरीन ईरानी रधी डोगरा बतौर शाहीन बेग, आतिश की बीवी और जावेद की बहन विशाल जाठवा बतौर हुस्न अली, टाइगर और जोया के लिए पालक बेटे कमूद मिश्रा बतौर राकेश प्रसाद झा के साबिक हैंडलर आमिर बशीर बतौर रेहान नजर, जोया के वालिद गेवी चाहल बतौर कप्तान अबरार शेख अनंत वधात शर्मा, किरण राव के तौर पर दानिश भट्ट बतौर कप्तान जावेद बेग, शाहीन के भाई सरताज कक्कड़ बतौर जूनियर, टाइगर और जोया के बेटे नखल के तौर पर चंद्रचूड़ राय, शाहिद लतीफ बतौर जनरल इम्तियाज हक, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान, एडवर्ड सोनन बलक बतौर डॉक्टर, हाफमैन जिब्रान शेख के
किरदार में नीरज परोहत, दानिश हसीन बतौर जनरल, डिप्टी जनरल रियाज, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस मिशेल ली, 8 बतौर जनरल जैमू, अनीश करबूला बतौर भारतीय वजीर आजम, डेंजल स्मिथ बतौर भारतीय वजीर दिफा, बमल ओबराय बतौर जनरल रबीरू, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया, संदीप कुलकर्णी बतौर रमीज, पाकिस्तान के वजीर आजम के सेक्रेटरी वरिंदर सिंह गुम्मन बतौर शकील, पाकिस्तानी जेल गार्ड, 9 शाहरुख खान बतौर पठान, कीम्यू पेशी, 10 आशुतोष राणा बतौर कर्नल।